अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मुस्कान पानी एंड आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ये स्पाइरा फुटवेयर एंड एक्सेसरीज के सीईओ हैं और काफ़ी अरसे से इस कंपनी को चला रहे हैं। इनका नाम है उस्मान सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you so much for having me here. अपनी कंपनी के बारे में अगर आप हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा बता सकें। Interesting, basically, Spider Footwear was something कि हम those थे best friends. We started this when we were in our O levels. So basically, this brand is a struggle of two friends that wanted to do something different with our lives back then. So तब we decided कि we should have our own brand. We didn't know what we were going to sell, what we were going to make, but we wanted to have a brand together. So back then in O levels, we ventured into the men's clothing market. This was initially a men's brand. We launched jeans, we had belts, and we had a lot of different items that catered to men's only. However, over the period of time, we evolved, we ventured into different items, and then we sort of got into this flip-flop market. We tried to see how the response of the customers would be because it was a big thing for us back then. क्योंकि हम थे कि हमने मेंस क्लोथिंग पे ही काम करना है और फिर हमने इवेंचुअली एक वुमेन्स फुटवेयर के अंदर आए एंड वी सॉ कि इसके अंदर एक हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया तो तब से we just thought कि this is something that we can work on, this is something that was attractive for us to sell as well because आपका अपना यकीन भी होना चाहिए ना कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है भी कि नहीं तो we did face a lot of difficulties back then. So eventually we got into this footwear market and the brand was made Spider Footwear and we do a lot of accessories as well. We make custom handbags. We have a lot of scarves. So but our main product is footwear and it is a women's brand. So we have women's footwear. So this is back then when we started and me and my best friend we're partners in this. And this is basically sort of a backstory of our brand. Right now, we have a lot of, alhamdulillah, we have a lot of clients, we have a lot of followers, and we are making designs every week for them. So this is something that is about our brand. And we are an online brand only. We do not have a physical or retail outlet. And the reason for us being online is because we've always believed that the online market in Pakistan or anywhere in the world is more lucrative because eventually when you're online, you can reach out to a bigger number of people. In case of a retail brand, I personally think that we have to spend a lot of money, a lot of resources in targeting a section of the audience. But as an online brand, you have a lot of leeway, you have a lot of room, and you have a lot of target audience that you can target. So basically, Spider Footwear is an online brand. So is your target market only from Pakistan? Currently, we are delivering all over Pakistan right now. We will be, inshallah, in the future going international. And we do have a lot of clients that are abroad, but they do get their orders from their relatives and a lot of customers basically. We have customers who are ordering from us from the past 5-10 years now. So this is basically because we've always believed in customer satisfaction. And a lot of our customers, they're abroad now and they send us pictures that I'm in Canada, I'm in America, somewhere else. I'm in the UK and they're showing us pictures of our designs and they're saying, okay, we'll order once we get back there. It has been difficult times for everyone because of the travel restrictions. No one can go to places now because of the COVID-19. But a lot of customers are based internationally. They do order from their relatives in Pakistan or someplace. So what do you think is the differentiating factor? How is Spider different from other footwear brands? Spider is basically different from other brands in a way that from day one, our goal has been to always put customers first. If you would like me to clarify, explain this, basically जो हमारा brand है ना, we want कि जिस तरह हम expect करते हैं कि एक brand आपको हमें किस तरह treat करेगा, हम अपना brand उस तरह ही चलाते हैं. So this is how we have
डिफरेंशिएटेड एंड हम डे वन से ही हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो है कस्टमर सर्विस। we give good customer service to our customers और इसमें बेसिकली बात यह है कि प्रोडक्ट्स तो बहुत लोग आके बेच सकते हैं, लोग हमें कॉपी भी करते हैं, लोग इस तरह के डिजाइन्स भी आते हैं। फुटवेयर इज बेसिकली समथिंग जो कि यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑलरेडी इन पाकिस्तान, तो दिस इज नॉट समथिंग कि हम कोई बहुत डिफरेंट चीज कर रहे हैं, हम वही चीज कर रहे हैं बट हम हमेशा कस्टमर को भी पुट देम ऑन टॉप। क्योंकि जब आप एक कस्टमर को इज्जत देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो फिर वो कस्टमर्स दे कम बैक टू यू। कस्टमर लॉयल्टी गेन करना है पाकिस्तान में बहुत आसान है, क्योंकि कस्टमर्स हैव नॉट गॉटन मतलब दैट गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग या रिटेल शॉपिंग। आई एम श्योर आपने भी कभी ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन एंड आपने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। तो एग्जैक्टली फुटवेयर क्योंकि साइजेस का बहुत मसला है, तो मैं आपको साइजेस की भी बात पे भी आता हूँ। So what sets us apart is that when we deliver something, our relationship with the customer is not over. Most brands thought that okay, we delivered the parcel, not a headache. So what we do is that we ensure that the customers who've gotten their parcels, gotten their food, they're happy with their purchase. If they're not happy with their purchase, we have a very flexible exchange policy. We have a very easy return policy. And we have a we have this dedicated WhatsApp number for our customers that they can contact us anytime. The biggest issue with the brands, if I'm comparing with other brands, is like you cannot get in touch with the customer representatives. You can either text them on Facebook, email them. No one responds to email in Pakistan. This is one the biggest drawback in Pakistan. People do not respond to emails. So a few brands now do have their WhatsApp numbers as well. But what we do is that, for instance, if someone has ordered a pair from us and they want to change the size, we tell them that we'll get your size changed from the comfort of your home. We dispatch the new size, the rider goes to your place. For example, if you've ordered, he'll take away the old size and he'll give the new one to you. Now, this is not something that only we're doing. A lot of brands have started doing this. But we've been doing this since we started from day one. There is another reason for that, because 99% of our customers are women. So we know how women face challenges in every day of their lives, and even if it were my sister or my mother who had to change something, they would have to go all the way to the TCS or MNP or any other courier outlet, send that back to the brand, and then the brand would send it back. What we do is that we make this exchange process very easy. All they have to do is they just have to inform us that we have to change their size, and then you just say कि आपका काम ये था, आपने हमें बताना था, हम करेंगे। हम वहाँ से नया साइज भिजवाते हैं और कस्टमर से ही ऑन द स्पॉट पुराना साइज देता है और नया साइज देते हैं। तो दिस इज समथिंग कि हम डे वन से कर रहे हैं, ऑल आवर कस्टमर्स नो अबाउट दिस। तो एक ये भी है कि कस्टमर्स को कोई टेंशन नहीं होती है कि इस तरह का अगर कोई मसला हो भी गया साइज के अंदर तो वो इट्स ओके। दूसरा, जब लोगों ने ऑर्डर कर लिए हैं तो वो फिर रिपीटेडली आते रहते हैं, उनको अपना साइज पता होता है। हमारी ना एक सेल लगती है 11/11 पे, जिसपे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पूरा साल वेट करते हैं, क्योंकि हमने ही वो लॉन्च की थी। मेरा एक्चुअली दोस्त है तारा, जो मेरा पार्टनर भी है, उसकी डिग्री है चाइना से, ही स्टडीड फ्रॉम शंघाई। तो उसने मुझे बताया कि यार ये बहुत कमाल सेल लगती है चाइना में 11/11 की, जिसमें लोग बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स होते हैं, और हम भी शॉपिंग करते थे, वो मेरे लिए वहाँ से शॉपिंग करता था। तो हमने कहा ओके लेट्स डू दिस। तो फिर हमने वो स्टार्ट की 11/11 की सेल। इवेंचुअली फिर जब बाकी ब्रांड्स को भी हवा लगी और अली बाबा आया, उन्होंने दराज खरीदा, तो फिर उन्होंने बहुत बड़ा 11/11 का इवेंट बनाया। बट ये जो एक्चुअल सेल होती है जो कि हम फॉलो करते हैं, वो 24 आवर्स के लिए सेल होती है। ब्रांड्स जो हैं यहाँ पे, उनका एक सेल कल्चर है जो कि हमारे अंदर नहीं है, तो उनकी सेल्स हफ्ता 2 हफ्ते उनके 11/11 इवेंट्स चलते हैं। हमारा एक्चुअली सिर्फ 24 आवर्स की सेल होती है, जिसमें कस्टमर्स ने जूतियाँ लेनी है और दे बाय 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 15 पेयर्स। वो लोगों का होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स लें। क्यों? क्योंकि वो एक जो डिस्काउंट्स होते हैं वो साल में एक दिन तो 24 आवर्स के लिए उनको मिलने हैं, इतने लेवल्स डिस्काउंट्स। लाइक 50% ऑफ लगनी है सेल, और एक्चुअल 50% ऑफ लगनी है। उसमें भी गिमिक्स वगैरह कुछ नहीं होता कि हम प्राइस ऊपर करके नीचे करके, जो प्राइस है उस पर /50%।
तो एक ये चीज़ हमारे ब्रांड को डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट अदर ब्रांड से, कि एक ही चीज़ है कि एक ही सिनोनिमस होगी हमारे ब्रांड के साथ। लोगों ने आना है और मतलब कि उन्होंने हमसे चीज़ें खरीदी। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बट जो मेन चीज़ है जो आपको मैंने बताया था कि वी ऑलवेज पुट कस्टमर्स फर्स्ट, और आवर कस्टमर्स कैन वाउच फॉर दैट। हमारी जो हैंडमेड स्लीपर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, पीपल लव देम। और उनके अंदर जो डिफरेंट चीज़ वो ये है कि वी डिज़ाइन एवरीथिंग। हम जो पूरा प्रोसेस है स्क्रैच से हमारी डिज़ाइन टीम करती है। वी चूज़ द सोल्स, वी चूज़ द फ्लावर्स, वी चूज़ द एक्सेसरीज जो कि एक फ्लिप फ्लॉप्स पर जानी है। और हमारी कोशिश होती है कि जो करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं, जो कलर्स सीज़न के इन हैं, हम उन कलर्स के साथ थोड़ा सा खेलें। हम लॉन्च ऐसे कलर्स करें कि जो कस्टमर्स को पसंद आएँ। तो ये चीज़ें एक होता है कि एक ये प्रोसेस होता है कि हम हमारी पूरी टीम पूरे इन्जॉय भी करती है, क्योंकि वी नो कि अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जब भी सीज़न आता है दे आर वेटिंग फॉर आवर कलेक्शंस, एंड थोड़ा सा प्रेशर भी हम पे होता है कि वी हैव टू लॉन्च वेरी गुड डिज़ाइंस दैट पीपल वुड बाय। तो अब एक और चीज़ जो है कि वी हैव अ लॉन्च एवरी वीकेंड, लाइक एवरी फ्राइडे नाइट वी हैव अ न्यू लॉन्च। तो एक ये चीज़ हो गई है कि यार कस्टमर्स आर एक्चुअली वेटिंग कि इनका आज शाम को लॉन्च होना है, एंड वी स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस अराउंड 3-4 PM इन द आफ्टरनून कि व्हाट आर यू गाइस लॉन्चिंग टुडे, एंड क्या आ रहा है, कौन से कलर्स आ रहे हैं। पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस। तो वी ऑलवेज ट्रीटेड आवर कस्टमर्स के जी एक फैमिली की तरह हम हैं। और ऑफ कोर्स जिन कस्टमर्स के इश्यूज भी आते हैं, मसले भी आते हैं, हमने हमेशा उन कस्टमर्स को प्रायोरिटी दी है। कभी हमने ये हमारी कोशिश होती है कि जो भी, अब दरवाज़ा तो नहीं है हमारी दुकान का, बट जो भी हमारी वेबसाइट पे है, हमारे इंस्टाग्राम पे है, हमारे फेसबुक पेज पे है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उन्हें ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं करना, तो व्हाट वी डू इज़ के वी इंश्योर कि हमारी तरफ से उनको एक रिस्पॉन्स टाइम होता है कि हमारी कोशिश होती है कि वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम, बट वी आर देयर कि हम कस्टमर्स को एक टाइमली फैशन के अंदर रिस्पॉन्ड करें, उनकी जो क्वेरीज हैं उनको हैंडल करें, उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस करने, उनके ऑर्डर्स बुक करें, और हम उनके ऑर्डर्स एज सुन एज पॉसिबल डिस्पैच करें। तो दिस इज़ व्हाट वी डन सो फार। और यही है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर utmost priority, और दिस इज़ बेसिकली व्हाट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स। अब मैं ये बाकी ब्रांड्स को इसमें मना ही नहीं कर रहा या फिर उनको कोई इस तरह यूज़ नहीं कर रहा, बट मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एज अ शॉपर मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की थी और मेरे कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं गए हुए। तो व्हाट आई डन इज़ कि आई मेड श्योर कि जो हमारा ब्रांड है वो लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस ना दे जो कि हमें पर्सनली फेस हो रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि वी वुड वांट कि जो हमारी कस्टमर सर्विस है वो ऐसी हो जैसे हम एक्सपेक्ट खुद करें बाकी ब्रांड से। तो ये कस्टमर सर्विस रहेगी तो पीपल वुड कम बैक, दे वुड ऑर्डर अगेन। हमारा रिवॉर्ड्स प्रोग्राम होता है हर की तरह कि हम वी मेक श्योर कि पीपल कीप ऑर्डरिंग फ्रॉम अस और उनको हम किसी तरीके से रिवॉर्ड करें। वी हैव मंथली गिवअवेज ऑन आवर पेज जिसमें कस्टमर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। हमारी जो स्टोरीज़ का एक फीचर होता है उसमें हम बड़ी कोशिश होती है कि हम कस्टमर्स का व्यू पॉइंट लें। वी मेक श्योर कि वी गेट देयर इनपुट रिगार्डिंग अ डिज़ाइन। कभी कभार हम अपने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन जो हमने लॉन्च करने होते हैं वो भी फ्लोट करते हैं टू इंश्योर कि कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे। वी हैव सम डिफरेंट पोल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनसे कस्टमर इंगेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। वन मोर थिंग इज़ आवर स्टोरीज। We've always told our customers कि do to share a picture of our design when you wear them, and this is something that we absolutely love। क्योंकि इससे basically what we're doing is कि we're showing a prospective customer what our other customers think। तो a lot of time our stories are something that are always customer generated content। कस्टमर्स हमें पिक्चर्स भेजते हैं, दे डू डिफरेंट थिंग्स। वो अपने ईद के कपड़ों के साथ पेयर करते हैं, वो कहीं बाहर जाके आउटडोर में पिक्चर खींचते हैं। अभी रिसेंटली कल परसों एक पिक्चर आई थी, वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल क्रॉस बॉडी बैग एंड द कस्टमर वाज अपेरेंटली ऑन हॉलीडे समवेयर, तो उसने बीच पे वो पिक्चर भेजी थी। तो इट वाज अ लवली पिक्चर एंड वी शेयर्ड इट ऑन विद आवर कम्युनिटी। और इस तरह फिर एंगेजमेंट होती है ना, पीपल फील दे फील नाइस कि यार एक हमें ब्रांड रिकग्नाइज कर रहा है। तो दिस इज समथिंग कि दिस इज ऑल कस्टमर जनरेटेड
एंड पीपल हु आर व्यूइंग आवर स्टोरीज दे नो कि ये हमारे कस्टमर्स की तरफ से ही पिक्चर हैं, तो एक वो ट्रस्ट लेवल जो है ना एक ब्रांड में वो बढ़ जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एक लॉन्चेस करते हैं, हम प्रमोशंस चलाते हैं, तो वी गेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स, बट दे हैव टू मतलब कि उन्होंने क्या देखना है हमारे ब्रांड के अंदर, उन्हें हमारा प्रोडक्ट्स देखने हैं, उन्हें हमारी स्टोरीज देखनी है, उन्हें हमारे रिव्यूज़ देखने हैं। तो वो इन चीज़ों से ही फिर इफेक्ट उन पर पड़ता है कि हाँ दिस इज़ अ ब्रांड दैट वी कैन ट्रस्ट इन, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट लेना इज़ द बिगेस्ट हर्डल फॉर एनी ऑनलाइन ब्रांड। क्यों? क्योंकि देयर इज़ सो मच कॉम्पिटिशन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट ऑफ कोर्स आवर डिज़ाइंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डिज़ाइंस। और अब तो वी मेड श्योर कि वो कॉपी भी ना हो सके, क्योंकि वी डिज़ाइन एवरीथिंग आवरसेल्फ। तो एक ये चीज़ होती है कि हमारे डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक होते हैं। तो अब ये भी एक चीज़ होती है कि काफ़ी जो हमारे डिज़ाइन हैं वो सोल्ड आउट हो चुके होते हैं, कस्टमर्स आके कि डिज़ाइन हमें चाहिए, तो वी डू समटाइम्स रीस्टॉक देम, बट हमारी जो एक कलेक्शन होती है ना वो लिमिटेड होती है। तो वी ट्राई कि हर साल हम ऐसे लिमिटेड डिज़ाइंस अपने कस्टमर्स को दें कि दे वुड फील प्राउड वेयरिंग दैम। एंड ऑफ कोर्स कुछ बेस्ट सेलर्स तो हर ब्रांड के होते हैं, वो हमारे बेस्ट सेलर्स हमेशा हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और वो ही मतलब कि जूते हैं, अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो दे ऑलवेज चूज समथिंग फ्रॉम आवर बेस्ट सेलर्स। तो कमिंग टुवर्ड्स द ऑपरेशन साइड, ये टेक्निकलिटी थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन आईटी आपको कैसा लगता है कि फैशन इंडस्ट्री, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट करेगी? Basically, as I told you, कि Spider Footwear is an online brand, so IT is very crucial for us, because without IT, we cannot do anything. Like, IT is in each and every little thing that we do. IT का जो सबसे बड़ा रोल आता है फॉर अस, बेसिकली मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करूँगा, ताकि क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कस्टमर्स हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी वेबसाइट है इट इज़ ऑपरेशनल, इट इज़ ईजी टू नेविगेट, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई मसला ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स दे कमिंग फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स। अब लैपटॉप वाला भी है ज़माना, बट बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो स्मार्टफोन्स पे ही पूरे कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो वहीं से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ इंश्योर कि जो हमारे ये जो वेबसाइट्स हैं, ये हमारी वेबसाइट जो है ऑपरेशनल हो, ईजी टू नेविगेट हो, और इसके अंदर कस्टमर्स को कोई इशू फेस ना आए। वो आईटी का बहुत बड़ा रोल है इसको मतलब कि इंश्योर करने के लिए कि जब भी कोई कस्टमर आए कोई हैंग वगैरह ना हो वेबसाइट, उनके लिए जो पिक्चर्स हैं वो ईजिली लोड हो जाएं, जो ऐड टू कार्ट वाला प्रोसेस है वो स्मूथ हो, और जो उसके अंदर शिपिंग का प्रोसेस है वो स्मूथ हो। पेमेंट गेटवेज भी हम ऑफर करते हैं, तो उसके अंदर उनके लिए भी कोई मसला ना हो कि जब उन्होंने डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, या कैश ऑन डिलीवरी करना है। अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अब कस्टमर्स ने कभी कुछ ट्रैकिंग वगैरह करनी होती है, कुछ इस तरह की करनी होती है कि हमारा ऑर्डर कहाँ पहुँचा है, हमें एक्सचेंज कराना है, तो व्हाट वी डू इज़ वी ऑफर देम कि एक हमारा व्हाट्सएप का डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर है, उस पर लोगों ने आना है, उनकी क्वेरीज करनी है, और उनको हमने एफिशिएंटली और टाइमली रिस्पॉन्ड करके उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है। तो आईटी का जो रोल है कस्टमर के लिए वो बड़ा ज़रूरी है कि हम जो अपने सिस्टम्स हैं उनको इतना एफिशिएंट बनाएं कि कस्टमर्स के लिए कोई इशू ना हो, कि वो उनके लिए कोई भी ऐसा कोई ट्रैकिंग का, कोई ऑर्डर प्लेसमेंट का, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो ना हो। हालांकि वो वेबसाइट पे जाकर भी अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं अपने अकाउंट डिटेल से, बट जो इसमें जो हम आईटी फैसिलिटेट कर रहा है वो ये कह रहा है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और उसको टिक कर लेगा। हमारे लिए फ्रॉम आर एंड द सेलर्स एंड आईटी ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव अ डेडिकेटेड डैशबोर्ड वेबसाइट का, जिसमें सारी हमने ऑर्डर डिटेल्स होती हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये चीज़ें हैं कि विदाउट आईटी इट बी वेरी डिफिकल्ट और बड़ा टीडियस हो जाएगा कि आप आईटी के बगैर इन चीज़ों को मैनुअली हैंडल करें। ऑफ कोर्स आईटी का दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग इन आईटी नाउ, बट इट्स वेरी यूजफुल कि आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं आईटी के अंदर जो कि लगती बहुत बेसिक हैं, बट इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आईटी जो है वो फॉर अस बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो हमारी वेबसाइट होती है, फिर हमारी सोशल मीडिया इज़ अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि हमारे काफ़ी ऑर्डर्स हम सोशल मीडिया में भी देते हैं लोगों से। क्यों? क्योंकि अब हमने हर तरह के कस्टमर को कैटर करना होता है। सम पीपल फाइंड इट वेरी इजी टू ब्राउज द वेबसाइट एंड प्लेस एन ऑर्डर, बट फॉर सम पीपल इट्स अ बिट डिफिकल्ट। People who do not
who aren't very computer friendly, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो what we offer them is कि basic solution करते हैं कि आप Instagram पे हमें मैसेज कर दें कि you want this product और आपने इसके अंदर अपनी डिटेल्स भेज के हम आपको ऑर्डर बुक कर लेते हैं. तो फेसबुक पे भी उनके ऑर्डर्स ले लेते हैं if they want to order via Facebook official page. और एक हमारा व्हाट्सएप की शॉप भी है जिस पर लोग इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. तो आईटी का जो मेन रोल है वो कस्टमर साइड के लिए जो हमने करना है उनके लिए इजी करना है, कस्टमर्स के लिए कोई मसला ना ऑर्डर प्लेस करने के लिए. और हमारे लिए ऑफ कोर्स आईटी ऑफर्स होल न्यू वर्ल्ड. हम अपनी एनालिटिक्स देख सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ऑल विद द क्लिक ऑफ अ बटन. हमने एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखनी है तो वो हमने उसको इनेबल किया हुआ है कि वो महीने की हमें रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हमें साल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हमें फ़ायदा था कि आगे हम प्लानिंग उसको किस तरह कर सकें. लॉजिस्टिक्स इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एंड उसकी जो इनकॉर्पोरेशन है, उसकी जो इंटीग्रेशन है विद आवर वेबसाइट, दैट इज़ ऑल आईटी. हमने अब वो कपल ऑफ ईयर्स अगो हमने अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स भी लोगों के लिए शुरू कर दी थी. अब लोग आराम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं ईजी पैसा. अब ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ आईटी. अगर ये आईटी ना होती हमारे पास तो हम ये चीज़ें कभी ऐड नहीं कर सकते थे और हम उन कस्टमर्स को शायद ऐड नहीं कर सकते थे जो कि लेट्स से क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव फिजिकल आउटलेट. तो लोग अपना आके कार्ड से नहीं पे कर सकते हैं. अब वो वेबसाइट के थ्रू ही आते हैं एंड दे कैन पे वाया क्रेडिट कार्ड या डेबिट. तो आईटी का जो रोल है सेलर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए इट्स वेरी क्रूशियल. कस्टमर्स के लिए जो आईटी है, हमने बेसिकली जो आईटी को कंफ्यूज नहीं करना कि आईटी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट या डिफरेंट टर्म. अब जो एवरेज कस्टमर भी है ना वो भी आईटी के अंदर इतना एनग्रॉस्ड हो गया हुआ है कि इट्स वेरी बेसिक. अब आपको भी पता है कि हर घर में एवरीवन इज़ ऑन देयर स्मार्टफोन, सबको स्मार्टफोन यूज़ करना आ गया. पहले बड़ा मुश्किल होता था, हम अपने वालिदैन को सिखाते थे. अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल मोबाइल फ्रेंडली, दे आर इक्विप्ड, दे कैन प्लेस इन ऑर्डर्स, खुद ही ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, खुद ही कुछ कर देते हैं. ये बेसिकली हमारी अपनी स्किल डेवलपमेंट भी है कि हम आईटी के अंदर इतने वो रिलायंट हो गए हैं. ये एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत गलत बात भी है कि कई बार भी डिसरिगार्ड दी एक्चुअल थिंग्स एंड हम उस चीज़ों के अंदर इतना इंग्रॉस हो जाते हैं. बट आईटी डज प्ले अ ह्यूज पार्ट इन ई कॉमर्स. और तो नॉर्मल कॉमर्स में भी आईटी है बिकॉज यू हैव पीओएस सिस्टम्स, रिटेल शॉप्स पे आपके पास वो कार्ड मशीन्स है, अब वो क्यूआर पेमेंट्स भी आ गई हैं. दिस इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ आईटी. तो आईटी डज प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन ई कॉमर्स एंड Right, so coming to e-commerce, how do you think e-commerce ने consumer behavior को इस particular industry में कैसे impact किया? Consumer behavior in e-commerce has been majorly impacted. क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो e-commerce ने आपको वो दे दिया है कि आप अब आराम से घर बैठ के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ईद का कुर्ता अगर किसी ने नहीं लिया, 2 दिन रह गई इस बार ईद जिस तरह हुई थी तो नहीं ले सकते थे लोग, क्योंकि ईद वो नहीं करती. लोगों ने डिलीवरीज की हैं और सारी दुकानें बंद थी ईद से पहले. तो उसमें अब जिन्होंने बिज़नेस किया है उन्होंने किया जिनके पास आईटी इनेबल्ड सर्विसेज थी, जिनके पास ई कॉमर्स था. जिन ब्रांड्स के पास ई कॉमर्स नहीं था वो कुछ नहीं कर सकते थे. इवन दो दिस वाज अ टेस्टिंग टाइम और अल्लाह करे कि ये जो कोरोना कोविड रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, पूरी हमारी जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो वैक्सीनेटेड हो जाए. बट एक ही एक एग्जांपल थी कि उन्होंने 10 दिन पहले ही सारा दुकानें वगैरह बंद कर दी, उन्होंने रिटेल टोटली बंद कर दी. और उस टाइम में जो एक पीक टाइम होता है हर बिज़नेस के लिए टू डू गुड बिजनेस, बिकॉज ईद इज़ अ फेस्टिवल इन पाकिस्तान एंड इन दैट टाइम एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स. तो उस टाइम के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स ने जो ई कॉमर्स पे थे दे टेक एडवांटेज, बट जो नहीं थे उनको आइडिया था कि अब दे हैव टू, बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड मूव्स नाउ. और दूसरा जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब लोग खुद भी प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना. क्यों? क्योंकि अब दिस इज़ एक तो होता है ना मॉल क्रॉलिंग होता है, बंदा पूरा दिन अपना लगाता है, जाता है, 5-10 ब्रांड्स देखे, दरमियान में खाना खाया, वो एक अलग एक्सपीरियंस है. बट किसी ने अगर कोई फास्ट शॉपिंग करनी है तो वो आराम से कुछ 10-12 ब्रांड्स खोल सकते हैं अपने सामने, उनको कंपेयर कर सकते हैं, दे कैन कंपेयर द प्राइसेस, द डिज़ाइंस, एवरीथिंग, और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. इसके अंदर कन्वीनियंस कस्टमर की है कि दे डोंट हैव टू गो आउट,
they don't have to waste time going from shop to shop. What they have to do is just open multiple tabs on their computer and add to cart जो उनसे इनको डिज़ाइन चाहिए. तो इसमें अब कस्टमर की कन्वीनियंस एक ये भी हो गई है कि अब तो कोविड टाइम्स के अंदर all of the brands realize कि they do need to have this e-commerce platform because going forward that is very important. कोरोना के जो टाइम थे, कोविड के टाइम्स में ऑल ऑफ द ब्रांड्स वर हर्ट बिकॉज सब कुछ बंद था. बट जिन्होंने ऑनलाइन शुरू किया हुआ है उन्होंने फिर उसके एडवांटेज भी हासिल किए, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि जब कोरोना का टाइम था दे वर ले ऑफ्स बट पीपल वर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी बाय स्टेइंग इनडोर्स. So they were spending that money somewhere and they were spending it online. A lot of people were spending it online. So if people had the online presence, they would make sales. वरना उनके लिए बड़ा मुश्किल था. तो छोटी सी दुकानें भी हैं. Even if they're closed, there is a sign outside. WhatsApp या कॉल करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. छोटी सी दुकानें हैं. There are pharmacies जो कि छोटे जनरल स्टोर्स. तो फ्यूचर में आप क्या अपॉर्चुनिटीज तक देखते हैं अपनी इस इंडस्ट्री के लिए? Basically, e-commerce is a growing industry in Pakistan. My master's thesis was on e-commerce and payment gateways as well, so I've done a lot of research on this as well. So basically, जो चीज़ है वो ये है कि this is an opportunity for brands to get enlisted in e-commerce. There are a lot of brands now. They don't even have physical shops, and all they're doing is that they are selling online, they're dealing online, and this has opened up a huge market. This has given people the power to be entrepreneurs. It has given people the power to quit their jobs and just sell something online. People who cannot afford to sell on their own, जिनके पास resources नहीं है, investment नहीं है, capital नहीं है, what they're doing is they're drop shipping. Either they're drop shipping या फिर वो लोग अपना दराज या बाकी जो market places हैं उन पे आके चीज़ें बेच रहे हैं. अब इसमें जो opportunities हैं, of course opportunities उन लोगों के लिए आई. अब छोटी सी एग्जांपल, एक हार्डवेयर स्टोर है, दैट हैज़ एक लिमिटेड सब उनका बजट है और एक लिमिटेड सी ही उनके पास कस्टमर्स हैं. दे कैन नॉट एक्सपैंड और टेक इट इनटू ई-कॉमर्स. व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ओपन्ड अ स्टोर ऑन दराज एंड दराज वाले ही उनके लिए फिर सेल्स जनरेट करते हैं और उन लोगों को फिर दराज से फ़ायदा होता है. तो दिस हैज़ गिवन पावर टू द कॉमन मैन. जिसके पास एक्सेस नहीं था अब उनके पास एक्सेस आ गया और चीज़ें बेचने का. अब लोगों को भी पता हो गया हुआ है कि यार हम बेच सकते हैं वहाँ पे. उनका स्कोप बढ़ गया हुआ है. स्कोप जब बढ़ जाता है किसी का तो उससे सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है ना कि बंदे का दिमाग खुल जाता है. इसमें जो एक सोच होती है ना बंदे की कि मैं इतने तक ही लिमिटेड हूँ, उससे बाहर आ जाता है. जो एक सेफ जोन होती है ना वो बाहर आके थोड़ा सा खेलता है उसके अंदर. तो इससे जो अपॉर्चुनिटीज़ एक कॉमन बंदे के लिए आई हैं वो भी हैं. अब बड़े लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए और उससे व्हाट्सएप सेलिंग कर रहे हैं. ई-कॉमर्स से जो एक इमरजेंस आई है, एक तो बड़े ब्रांड्स तो शुरू से ही हैं, स्मॉल स्केल ब्रांड्स बहुत आए हैं, मीडियम स्केल ब्रांड्स बहुत आए हैं, होम बेस्ड कुक्स आए हैं, होम बेस्ड बेकर्स इतने आए हैं. और वो किस तरह आए हैं? क्यों? क्योंकि दे नो कि आप वो चीज़ें बेच सकते हैं ऑनलाइन. एंड इसमें ये नहीं है कि ऑल ऑफ देम हैव दिस सिस्टम कि जी हमने एक एक्यूरेट तरीके से चलना है और एक हमारा वो होगा कि हम एक तरीके से चलें और एक हमारा डिस्टिंग्विश सिस्टम हो. बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ आपको प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं करेंगे, वो चीज़ें बेच रहे हैं ऑनलाइन. अब वो लॉजिस्टिक्स के साथ कर रहे हैं, फिर जो राइड हेयरिंग सर्विसेज हैं, डिलीवरी सर्विसेज हैं, तो एवरीथिंग इज़ बीइंग मेड पॉसिबल ड्यू टू ई-कॉमर्स. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अमेज़ॉन ने ऑफिशियली पाकिस्तान को इन्वेस्ट कर लिया हुआ है. आई थिंक दैट वुड ओपन अप अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आप क्या नहीं बेच सकते, आप अमेरिकन मार्केट में कर रहे हो. तो इसमें बेसिकली तो चाहिए पाकिस्तान एज ए नेशन, वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस, वी नीड टू इन्वेस्ट इन IT. हमें थोड़ी बहुत अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे बेसिक स्कूल लेवल पे है वो अभी तक इन चीज़ों के अंदर नहीं आए हुए हैं. प्रोग्रामिंग हो गई है, आपकी IT हो गई है, मार्केटिंग हो गई, ये चीज़ें नहीं सिखा रहे. तो ये चीज़ों के भी थोड़ा बहुत हमें करिकुलम चेंज करना पड़ेगा. स्किल्स का ज़माना है तो डिग्री से ज़्यादा थोड़ा बहुत स्किल्स की तरफ भी लोगों को आना पड़ेगा. अमेज़ॉन सिखाना पड़ेगा. इस तरह की चीज़ें हैं. जब आवाम सीखेगी, लोग सीखेंगे तो फिर ही मतलब कि हम पूरा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ कंट्री. तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा आपको पता है टारगेट ऑडियंस है. पीपल आर विलिंग टू बाय ऑनलाइन. वी जस्ट हैव टू सेल द राइट प्रोडक्ट द राइट वे एंड अपॉर्चुनिटीज़ फिर हैं. दैट इज़ अप टू यू कि आप उसको कितना ग्रो करना चाहते हैं.
तो थैंक यू सो मच आपके You're टाइम most के लिए। welcome. अगर जाने से पहले आप व्यूअर्स को कोई लास्ट कमेंट व्यूअर्स को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नॉट ऑल ऑनलाइन ब्रांड्स आर बैड। थोड़ा बहुत आपको जो बेसिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, तो थोड़े बहुत एक रिकमेंडेशन भी हो सकती है, थोड़ी बहुत सजेशन भी हो सकती है। A lot of people are afraid because I've had interaction with hundreds of customers, और उनका सबसे पहले जो एक इशू होता है कि आप स्कैम तो नहीं है। तो इसमें मैं बेसिकली थोड़ा बहुत कस्टमर्स को बताना चाहूँगा कि आप लोग स्कैम से किस तरह बच सकते हैं। स्कैम से बचने के सबसे जो नंबर 1 तरीका है कि आप सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट देखें ऑनलाइन, ऑलवेज आस्क कि आप उसकी एक्चुअल पिक्चर्स भेजें। स्टॉक पिक्चर्स पे कभी आप यकीन ना करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स अ स्कैम। ठीक है। सेकेंडली, ऑलवेज चेक द रिव्यूज़ ऑफ द पेज। आप उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। अगर आपको उसमें कोई रिव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई कस्टमर मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया हुआ या फिर वो डिलीट कर रहे हैं, एंड देव स्कैम्ड अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर, और वो आपको भी स्कैम करेंगे। तो तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, और अगर आपको लगे कि ये चीज़ जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर कि आप कोई कस्टमर रिव्यूज़ दिखाएं, कोई कस्टमर रिकमेंडेशन दिखाएं। और प्राइसेस की आपको कोई होता है कि कभी बार हम एक ऐसी अनबिलीवेबल प्राइस मिल जाती है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और वो सैडली ट्रू नहीं होता, वो आपको फिर स्कैम ही होता है। तो व्हाट आई वुड से टू द कस्टमर्स कि एक जो यू नीड टू गेट अ बिट स्मार्ट व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन, यू नीड टू चेक फॉर दीज थिंग्स टू मेक श्योर कि ये ब्रांड वो है। और बड़ी बार होता है कि बड़े ब्रांड्स भी कभी कभार इस तरह की कर जाते हैं चीज़ें, गलत चीज़ आ जाती है, आपको पैसे गलत चार्ज हो जाते हैं, उसके लिए फिर भी सोल्यूशन होता है। बट जो बहुत सारा एक इशू ये भी आ गया ना कि ई कॉमर्स इतना ज़्यादा हो गया, तो एक लिस्ट ऑफ अनरेगुलेटेड सेलर्स आ गई हुई है। पीपल हु डू नॉट हैव रजिस्टर्ड एनीथिंग, जिनका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो देर सेलिंग फेक थिंग्स, या फिर वो आपसे पैसे लेके या कैश ऑन डिलीवरी पे कर रहे हैं। तो लोगों का एक यही क्वेश्चन होता है कि हम स्कैम से किस तरह बच सकते हैं। तो मेरा अपना जो एक ख्याल है वो ये है कि आपकी जो अपनी रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन। तो दिस इज़ बेसिकली अ मैसेज। ये नहीं कि आप सिर्फ स्पाइडा से खरीदें, स्पाइडा तो एक है ही प्रॉपर ब्रांड, तो आप उधर से ज़रूर खरीदें, बट एक जेनेरिक आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। दिस इज़ व्हाट आई वुड से टू द कस्टमर्स, Thank you पीपल so हु आर much. वॉचिंग। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आपके टाइम का बहुत बहुत थैंक यू, Thank you so एंड much for पूरी having me. टीम इंस्पायर की आपको, आपकी कंपनी को, आपके पार्टनर को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।